বর্তমানে বহু মানুষ বিশেষ করে যারা নিচু জাতের অর্থাৎ বর্ণভেদ প্রথার একদম নিচু জাতের মানুষ অর্থাৎ শূদ্র বা দলিত বা তারও নিচের মানুষগুলো যারা বাবা সাহেব আম্বেদকরের দৌলতে শিক্ষা, সামাজিক বিভিন্ন অধিকার ইত্যাদি ভোগ করেছে, ভোগ করার পরে একটু চাকরি-বাকরি পেয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে এবং তারা চেষ্টা করেছে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে বা সেই নিচু জাতের এলাকা থেকে উঠে এসে শহরে বা উচ্চবিত্তদের কাছাকাছি বসবাস করার এবং তাদের কালচার, তাদের রীতিরেওয়াজ মানিয়ে নেওয়া, তাদের মতো করে নিজেদের লাইফস্টাইল পরিবর্তন করে জাতে ওঠার চেষ্টা করেছেন। এরকম ঘটনা আমরা বিগত কয়েক দশক ধরে দেখছি এবং আমাদের পরিচিত মহলে অনেকেই দেখেছি যারা দাস, মণ্ডল, বিশ্বাস এরকম নিচু জাতের মানুষ তারা শহর এলাকায় এসে উচ্চবিত্তদের মতো দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের রীতিনীতি, পুজো আচারগুলো করেন। কিন্তু আমাদের এই সমস্ত শূদ্র বা দলিত, আদিবাসী এদের মধ্যে এই ধরনের ব্রাহ্মণ্যবাদী কালচার আগে ছিল না। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল, নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। সেগুলোকে ভুলে সরাসরি জাতে ওঠার জন্য এই সমস্ত উচ্চ বর্ণের বা উচ্চ জাতের মানুষের কাছাকাছি এসে গা ঘষাঘষি করে বেঁচে থাকার একটা নতুন ট্র্যাডিশন তারা চালু করেছেন এবং তারা ভাবছেন সত্যি সত্যি আমরা জাতে উঠে গেছি, এখন আর আগের মতো জাতপাত নেই, এখন কেউ মানে না। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা আলাদা। তার আগে বলি, বিগত কয়েক দশক ধরে বিজেপি আরএসএস যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করছে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে হিন্দু রাষ্ট্র। মুখে হিন্দু রাষ্ট্র বললেও বাস্তবে অ্যাকচুয়ালি হিন্দু রাষ্ট্র নয়, এটা হচ্ছে মনুবাদী বা ব্রাহ্মণ্যবাদী একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা। সেখানে নির্বাচন তো দূরের ব্যাপার, কোনো রকম অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক কোনো কিছুতে নিচু জাতের মানুষের অংশগ্রহণ, তাদের শিক্ষার অধিকার, তাদের সামাজিক অধিকার কিছুই থাকবে না যেমনটা ছিল একটা সময়। কিন্তু মোগল আমল থেকে বা ব্রিটিশ আমল থেকে এই সামাজিক ভেদাভেদ অনেকটা কমে আসার পরে এখন ব্রাহ্মণ বা একটু উচ্চবর্ণের মধ্যে এসেছে যে আমরা জাতপাত মানি না, ইত্যাদি মানি না। তো এরকম একটা কালচার এবং এটা নিয়ে রাজনীতিতে ছোটোখাটো কিছু সুযোগ সুবিধাও তারা দিয়ে থাকেন এবং পাশাপাশি বসে নিচু বর্ণের মানুষ মনে করেন বাহ আমি জাতে উঠে গেছি। বাস্তবটা তা না। আপনাদের একটা ভিডিও দেখাবো, খুব ভয়ানক ভিডিও, এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশাল ভাইরাল হচ্ছে, হয়তো আপনারা অনেকে দেখেননি বা চোখ এড়িয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে এরকমই কিছু মানুষ যারা মানে চাকরি বাকরি, শিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে একটু জাতে উঠেছেন ভেবেছিলেন এবং তারা মানে আলিগড়ের মতো একটা মানে বিত্তশালী এলাকায়, ইউপির আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় খুব পরিচিত নাম, তার ঠিক কাছাকাছি আলিগড়ে একটা বিশাল বড় কমপ্লেক্স হয়েছে। এখন আপনারা দেখেছেন যে বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় কমপ্লেক্স হয়, হাউজিং কমপ্লেক্স, সেখানে কোটি কোটি টাকা দাম ফ্ল্যাটের। তো এরকমই একটা হাউজিং কমপ্লেক্স খুব মানে হাই প্রোফাইল, সেখানে এরকম কিছু আমাদের নিচু স্তর থেকে উঠে আসা দলিত, আদিবাসী বা শূদ্র সমাজের মানুষ যারা মনে করতেন জাতে উঠে গেছেন, তো তারা সেখানে ফ্ল্যাট বুক করেছিলেন, বসবাসও শুরু করেছিলেন। কিন্তু তারপরে কি ঘটনা ঘটেছে আপনাদের দেখাবো এবং ভারতবর্ষ বর্ণবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কেন বাবা সাহেব আম্বেদকর আমৃত্যু লড়াই করেছিলেন সেটা আপনার হাড়ে হাড়ে টের পাবেন। তাই প্রত্যেক অনুরোধ করব ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং যারা নিজেরা জাতে উঠে গেছেন বলে নিজের স্বজাতিকে টেনে তোলার বদলে উচ্চবর্ণের দালালি করেন বা উচ্চবর্ণে যে রাজনীতি চলছে সেখানে গদগদ হয়ে মঞ্চ আলোকিত করে নিজেকে ধন্য ধন্য করেন, তাদেরকে বলবো ভারতবর্ষের জাতপাত ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের, বিশেষ করে উচ্চবর্ণদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে আছে, ডিএনএতে ঢুকে আছে। ফলে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন এবং ব্যাপক শেয়ার করুন। ये मकान बिकाऊ है, वो मकान बिकाऊ है, यहाँ तो कई मकान बिकाऊ हैं। ये तस्वीरें अलीगढ़ की हैं। यहाँ 100 से अधिक दलित परिवारों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। पॉश कॉलोनी में रहने वाले दलित परिवारों का कहना है कि ऊंची जाति के लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए वो अब सोसाइटी छोड़कर जाना चाहते हैं। ये मामला थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के सागवान सिटी का है। यहाँ दलितों के लगभग 350 मकान और फ्लैट्स हैं, जिनमें लगभग 100 से 125 परिवार रह रहे हैं। आरोप है कि कॉलोनी के कुछ दबंग लोग दलित परिवारों पर हमेशा दबाव बनाते रहते हैं, उन्हें अम्बेडकर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा नहीं मनाने देते।
जब दलित परिवार इसका विरोध करते हैं तो अपर कास्ट के कुछ लोग घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं और जाति सूचक गालियां भी देते हैं। तो जाति पूछ के ये हमें फ्लैट दिए गए थे। अगर ऐसा ही था, जाति के बेस पे ही अगर ये सब कुछ करना था, तो हम जब खरीदने आए थे तो हमें बता देना चाहिए था कि जी SC ST के लिए यहाँ अलाउ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हाई कास्ट के लिए ही अलाउ है, वही यहाँ पे मकान खरीद सकते हैं, बाकी के लोग नहीं खरीद सकते हैं। अगर यही चीज, उस समय कोई कंडीशन रखी गई थी? कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया था। आओ आप खरीदो, आप अच्छे से रहो, यहाँ पे ये फैसिलिटी है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहेंगे। सोसाइटी बहुत अच्छी है, सभी पढ़े लिखे लोग हैं और सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। मतलब इतना शिक्षित समाज होते हुए भी और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? सागवान जी ये बोल के बेचे ना अपनी प्रॉपर्टी को, पहले से बता रहे कि हम इस कास्ट इस वर्ग को नहीं देंगे, ये बोलना चाहिए ना उनको। पीड़ित दलितों का कहना है कि 2017 से उनके साथ अन्याय हो रहा है। 2022 में भी अपनी सोसाइटी में अंबेडकर जयंती नहीं मना पाए। इस बार 14 अप्रैल को उन्होंने एक छोटा सा भंडारा करने का प्लान बनाया तो सोसाइटी के दबंगों ने उन्हें धमकाया और कहा कि प्रशासन से परमिशन लेकर आओ। लेकिन जब दलित परिवार के लोग डीएम के पास परमिशन लेने गए तो डीएम ने कहा इस तरह के कार्यक्रम के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने पूरी कोशिश करी इसको ना मनमाने देने की और यहाँ तक कह दिया था कि यदि मनेगी भी तो हम यहाँ पर गोली वोली भी चल सकती है। तो हम यहाँ पर गोली चलाने या सहने के लिए नहीं आए थे। तो हम लोगों ने चाहा भाई हम शांति प्रिय लोग हैं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो हमने परमिशन वापस ले ली थी। बावजूद इसके नरेंद्र सागवान और उसकी टीम ने यहाँ पर सभी पार्कों में पानी भरवा दिया था कि हम किसी भी तरीके से यहाँ इकट्ठे ना हो सके। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं है, हम लोग सब शांति प्रिय लोग हैं, आराम से रह रहे थे। 5 साल हो गए। इस बार हमारा अम्बेडकर जयंती मनाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। हम चाह रहे थे कि सामूहिक रूप से कुछ कलेक्शन करके सभी लोग एक पार्क में इकट्ठा होकर के अपना भोज करेंगे और इसी तरह से शुरुआत कर देंगे यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही हम यहाँ पर इकट्ठा हुए और सभी लोग जो है अम्बेडकर पार्क में गए थे वहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए, तो हमें खबर मिली कि यहाँ पर टेंट वेंट सब फाड़ दिया गया। जैसे ही हम यहाँ पर वापस आए तो हमें ऐसा ही नज़ारा देखने के लिए मिला। हमने वहाँ पर उपस्थित जो हल्का इंचार्ज है सत्येंद्र पाल सिंह मलिक, उनसे कहा तो हमने भाई ये क्या किया है आपने? बोले साहब हमको तो जैसा आदेश है उसका पालन कर रहे हैं। मैंने कि हम लोगों के आने का इंतजार कर लेते, लेकिन उन्होंने कहा हम इसमें क्या कर सकते हैं। दलित परिवारों ने पुलिस पर दबंगों से मिले होने का आरोप लगाया और कहा कि स्थानीय ने हमारे टेंट उखाड़कर फेंक दिए क्योंकि परमिशन नहीं थी, जबकि अधिकारियों ने कहा था कि परमिशन की जरूरत ही नहीं है। पीड़ित परिवार वालों ने इस मामले की शिकायत शासन और प्रशासन के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब ये लोग सोसाइटी छोड़कर जाना चाहते हैं। यदि हमें अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने आराध्य की स्तुति करने के लिए भी आज़ादी नहीं हो, तो ऐसी सोसाइटी में हम बैठ के क्या करें? हम आज कहने को उन्नत हो गए हैं, देश यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? एक दलित आज भी पढ़े लिखे तथाकथित लोगों हम हैं और एक अनपढ़ अंगूठा टेक है, वो हमें अपने बराबर समझने को तैयार नहीं है आज भी। मैं डॉक्टरेट हूँ, PhD हूँ, बहुत सारों को पढ़ाता हूँ जिसमें सभी जाति के होते हैं, लेकिन एक अंगूठा टेक व्यक्ति आज भी हमें अपने बराबर मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी दुर्भाग्य की स्थिति में आदमी करे क्या? किस तरह परेशानी आ रही है यहाँ पर? अम्बेडकर जयंती मनाने नहीं दी, और अम्बेडकर जयंती से भी सामान्य एक भोज था जिसको ये भागवत वगैरह नाम देते, हम सब मिलके एक जगह खाना ही तो खाना चाह रहे थे। क्या हम दलित अपने सभी मिलके एक जगह खाना नहीं खा सकते? जाति, धर्म या मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार का अत्याचार गैर कानूनी है। अलीगढ़ के दलितों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये विधि के शासन के खिलाफ है। सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। प्रशासन के लोग अगर मिले हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।